Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am start with my lecture number 4, which are came under Unit 1 for the digital communication for ETC 6 semester student. So in my today lecture, I will cover the various topic, that is delta modulation, delta demodulation, and that both are the similar case, that is called delta sigma modulator. So I will also differentiate among your delta modulation and delta sigma modulator, and what is the benefit of delta sigma modulator over your delta modulation. So the last one is called a DPCM encoder and DPCM decoder, and the one most of the important topic here we mentioned, that is adaptive delta modulation. So I can start with your delta modulation. So as per the theory of your delta modulation, we are clear the concept of your PCM and DPCM. So PCM में क्या होता है कि हम modulating by taking all the samples. जैसे हमारे पास इनपुट पे 3 बिट थे, क्लियर है पीसीएम के केस में। मैंने पिछली बार आपको पीसीएम का एक फुली केस स्टडी करवाया था, जिसमें मैंने पीसीएम के 3 बिट लिए थे। तो अगर आप 3 बिट लेते हो पीसीएम के अंदर, तो आपके टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। तो आप हर एक लेवल को क्या करते हो? एनकोड करते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है डीपीएसएम में, इसमें लेवल इनकोडिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सैंपल्स का डिफरेंस जो होता है वो इनकोड होता है। इट मीन्स वी आर टेकिंग द सक्सेसिव सैंपल, वी कैन से विच आर very much in correlation, or you can say that sample which are successor, it means successor sample taken into account for taking the difference of the sample are encoding, so in which your bandwidth will be saved. So here in DM, that is delta modulation, here the bandwidth is further saved by encoding your error signal. So I can clear the concept of your delta modulation over your PCM and DPCM more clearly here. So here we show here that in which in DM we are comparing your x of t with your quantized signal. क्लियर, हम इसमें क्या करते हैं, आपके इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी को एक क्वांटाइज सिग्नल के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर तो आपका इनपुट सिग्नल उस क्वांटाइज्ड वैल्यू से ग्रेटर है, तो आपको वो एक स्टेप साइज डेल्टा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, अगर वो आपका इनपुट सिग्नल आपके क्वांटाइज सिग्नल से लेस है, तो आपको स्टेप साइज डेल्टा माइनस डेल्टा प्रोड्यूस करेगा। सो इन विच एवरी यानी कि एवरी sample must go with your delta. So here is the more utilization of bandwidth. So bandwidth is saved in case of your delta modulation. Clear, by considering the two category, the plus minus delta. Now only one, so as per your delta feature, you say if you require, if your input signal is greater than your x of t, it will be produced plus delta. Reverse, it will be produced minus delta. So as per the consideration of your step size, that will be represented by plus or minus delta. We can say that in case of your DM, now only one bit requirement for your DM. It means the one bit requirement taking per sample. So here the bandwidth is further saved in case of your delta modulation. But in case of your DPCM, we are encoding the multiple bit as per the difference of the signal, or in case of your PCM, it depends upon the range how many bits are required. So here only the one bit required for the uh, for encoding. So that's why here the further bandwidth will be reduced as compared to your DPCM and PCM. So in DPCM, the error signal is quantized and coded based upon the quantized output. So the length of the encoding bits for each sample will be different. Clear? And to reduce the transmitted bit, quantizer is used in DM. तो हम क्या करेंगे अब? So the main difference between your delta modulation and your DPCM over your PCM, that will be clear by the block diagram of your delta modulation. So that is a delta modulation block diagram. So as per your diagram, we can say that we are using here a one sampler block in which we are giving your analog input signal, and here we also use a one integrator block. So by the use of integrator, you can assign a you can say a predicted value or integrated value that will be shown by your x
and x cap of NTS. Clear? So here the difference between the two will be create a error signal. So that error signal will be quantized. So that I can see in my previous section, I say that if your input signal is greater than your quantized input signal, it will be produce a one bit. You can say plus delta or minus delta as a error signal in your output. So that will be one bit quantizer here we use. So after this, that quantized error signal will be added with your impulse train function, and we can getting the final delta modulated output. So that is a basic block diagram of your delta modulation. So in some books here we use the integrator, but in some books we also see the in place of your integrator we can use the prediction filter. So as per your mathematical analysis of your delta modulation, we see that here we getting your error signal. So the error signal is a difference between your input signal plus your integrated signal, that is represented by x and ts. तो हमारा अगर यहाँ देखें तो आपका एरर सिग्नल क्या मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है। एक तो इंटीग्रेटर से आपको आपको आउटपुट जनरेट हुई है और एक आपका क्या आ रहा है यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा आपका x ऑफ NTS माइनस x कैप ऑफ NTS। तो उस केस में अगर आपका एरर सिग्नल पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी इनपुट जो है वो आपकी इस इंटीग्रेटेड के आउटपुट से ज्यादा है। क्लियर? वी अप्लाई द इनपुट हियर x of t आफ्टर सैम्पलिंग, we can getting the x and ts and represent your number of sample in your input signal. Clear? Or integrated show your x cap of NTS. So if the input signal is greater than your integrated signal, you can generate a plus delta, uh, or whether you can generate a minus delta. So as per your assumption, you can also hear your EQ NTS here. Clear? That will be plus delta or minus delta depend upon whether the input signal is greater than your x cap NTS or whether the input signal is less than your x cap of NTS. So this is the basic concept which are used in your delta modulation. Um, so the one important note in a delta modulation, that is the sample output sent in terms of plus delta and minus delta. So the bandwidth is same in case of your DM. It means as per your step size plus minus delta, you can use only one bit quantizer. So you can send one bit per sample. So that's why here the bandwidth is further saved as compared to your DPCM and your PCM. So after we can getting that modulated output, अगर हमें देखें तो क्या मिलती है यहाँ पे, एक तो यहाँ से हमें एक एरर सिग्नल मिल रहा है, दैट इज ये वाला। ठीक है, ये वाला एरर सिग्नल मिलेगा और दूसरा हमें इम्पल्स फंक्शन मिलेगा। ये दोनों फंक्शन यहाँ पे हमें ऐड होके डेल्टा मोडुलेटेड के आउटपुट में मिलेंगे। तो मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, डेल्टा मोडुलेटेड की आउटपुट क्या मिलेगी हमें, दैट इज एक तो एरर सिग्नल into में impulse function that should be represented by your n taking from minus infinity to infinity del of t and t s. So that is a delta modulated output expression as per your C and in your diagrams. You can say block diagram of your delta modulation. So here we also represent the waveform for your delta modulation. We can represent a simple sine wave, and the simple sine wave, how the simple sine wave converted into a digital pulses with the help of a delta modulation. Here we can say that that represent your staircase signal. Clear? So that staircase signal depends upon, we starting from here our, that is called you can say integrated output signal, or you can say staircase signal. If the staircase signal is less than your input signal, staircase signal is less than your input signal, you will be getting a plus delta at the output. Your input will be start from your pulse plus delta. After this you are again check here, you can again check here, here is also the input signal, your staircase signal, you can say x cap of NTS will be less than your input signal. So here we also generate again a plus delta. Clear? Again you can check your again the staircase signal, you can say x cap of NTS further less from your input signal, so you can also generate again a plus delta. But in that case you are seeing in the figure your staircase signal, you can say x cap of NTS is less than your
x NTS is less than, so in case you can generate a minus delta. Clear? And same as for your minus delta, again your staircase signal is less than from your input signal, you can generate a plus delta. So on the behalf of this phenomena, you can generate the staircase output at the output of your delta modulation. So delta, so if you represent the plus delta will be 1 and the minus delta will be represented by 0, it means you are sending 1 bit per sample. So the bandwidth in case of a delta modulation is saved as compared to your DPCM, because in DPCM we can use the difference of your multiple bit, but in case of your PCM you are taking the level as per the range. So we can require the more bit as per the range. So in that case, you can require the larger bandwidth. So at your receiver side, you can also, that is a block diagram of your delta modulation transmitter. Here we use the integrator, and if you apply the XGM, XGM stand for your modulated output at the demodulator transmitter. सो रिसीवर उसको रिसीव करेगा उस मोलेटेड आउटपुट को, फिर उसको किसको दे देगा, इंटीग्रेटर को. इंटीग्रेटर क्या करेगा, स्टेयर के सिग्नल जनरेट करेगा, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर एक्स कैप एंड टी एस. उस स्टेयर की सिग्नल को जब हम किसी लो पास फिल्टर के थ्रू पास करवाएंगे तो वहां से हमारा इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. Clear? So you can consider the plus delta is equal to 1 and minus delta is represented by your 0. So here we also represent that analysis with the help of your mathematical analysis. You can see that as we were very well known about your to clear the concept of your receiver, some mathematical assumptions we are assume here. We know that u of t is equal to, that is unit step function is equal to minus infinity to t del of t into में dt. So the output of integrator क्या मिलेगी, अगर हमें इंटीग्रेटर की आउटपुट हमें क्या मिल रही है, दैट इज एक्स कैप ऑफ डीएम. क्लियर? तो वो क्या हो जाएगी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी वो हमारी, दैट इज माइनस डेल्टा टू टी. इम्पल्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स ऑफ डीएम का. क्लियर? एक्स ऑफ डी एम टी इंटू में डी टी. इट मीन्स हमने इस रिलेशन को आपकी इस रिलेशन से क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है. ये आपकी आउटपुट है और ये वाली क्या है, इनपुट है. इसमें भी क्या है, ये आपकी आउटपुट है और ये वाली इनपुट है. तो आउटपुट पे हमने क्या लिखा है, एक्स कैप ऑफ डीएम, और इनपुट पे हमें एक्स डीएम. तो वो फंक्शन को मैंने सेम रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे. ठीक है? तो हमें पता है आपका जो अगर आपने पीछे रिलेशन निकाला था एक्स ऑफ डीएम का, एक्स ऑफ डीएम का रिलेशन क्या कह रहा है, पीछे से देखिए जो आपने अभी लिखा है, फाइनल आउटपुट ऑफ योर डीएम दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर ई क्यू एन टी एस एन टेकिंग फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल टी माइनस एन टी एस. तो मैंने वही वैल्यू यहाँ आपके एक्सजीएम की जगह पुट करवाई है, तो मैंने वही सेम वैल्यू पुट करवाई है यहाँ. ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर अगर आपका ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक है? तो अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन ले रहे हैं, तो जब आप उस यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड अ staircase output और you can say integrated output. तो integrated output पे आपको staircase signal मिलेगा जो कि del को किस में चेंज कर देगा, u of t and minus nts. it means आपके impulse function को आपने unit step function में चेंज किया, तभी आपको आउटपुट किस फॉर्म में मिली है, staircase की फॉर्म में मिली है at the integrated output. क्लियर? ठीक है? तो हमने जब इसका एनुअल बनाया, यानी किसका, स्टेयरकेस का, तो ये स्टेयरकेस सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा. जब आप उस स्टेयरकेस सिग्नल को, इट मींस जो ये पल्सेस की फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, जब आप इसको एलपीएफ के थ्रू पास करोगे तो आपको एक ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो है लाइक इंटीग्रेटेड के आउटपुट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. सो दैट रिप्रेजेंट योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो दिस कंसेप्ट यू कैन क्लियर अबाउट योर डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक है? Again you can come with your delta sigma modulator. So before taking the concept of a delta sigma modulator, we are clear the concept of your oversampling. What do you mean by oversampling? So by the use of oversampling, we can also reduce the anti-aliasing filter.
रिक्वायरमेंट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर सैम्पलिंग क्या होगी, सैम्पलिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें जो अलाइजिंग का इफेक्ट आता था उसको रिमूव करने के लिए हमें, अलाइजिंग स्टैंड फॉर आपकी जो वेव फॉर्म है वो आपस में ओवरलैप करती हैं, तो अब वो अगर वो ओवरलैप ना करें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी अलाइजिंग फिल्टर यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स ओवर सैम्पलिंग आपके एंटी अलाइजिंग फिल्टर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है, और साथ में ही उसका सैम्पलिंग रेट इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण जो क्वांटेशन नॉइज होती है that will be automatically reduced by the use of your oversampling. So here we also clear the concept of your oversampling. जैसे सपोज करो ये फिगर आपको दिखाई हुई है, इसमें आपको दो बैंड्स दिखाए हुए हैं, तो ये आपके एलपीए फिल्टर की आउटपुट है और ये एक बैंड की आउटपुट है। ये दोनों आउटपुट आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस बैंडविड्थ को, अगर इन केस अगर मैं ओवर सैम्पलिंग करती हूँ, इनकी सैम्पलिंग के रेट को मैं इंक्रीज कर देती हूँ, तो क्या होगा, आपका जो सिग्नल है दैट विल बी टच, ओनली टच करेगा, और it means that will be not overlapping here. So that is a main advantage of your over, we can say, over sampling. By the use of over sampling you also reduce the requirement of your anti-aliasing filter, plus your you can say quantization noise is automatically removed. So here we also show a figure of your quantization noise. So by in that figure you can say that your quantization noise will be came under your back panel as per you increase the amplitude of the input signal. क्लियर। इसमें क्या होगा कि आपकी क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो रिड्यूस कैसे हुई है, क्योंकि आपने एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM लिखा है, तो आपका मॉडरेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो इतना ज्यादा है कि नॉइज उसके पीछे है, उसके बैक पैनल पे है, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो ओवर सैम्पलिंग से आपका नॉइज का जो क्वांटाइजेशन नॉइज है that will be also automatically reduced. So by the oversampling, the amplitude of the quantization noise reduced by high amplitude of the input signal. Clear? सो एक्स्ट्रा नॉइज अगर मान लो उसके बाद भी कुछ नॉइज रह जाती है तो उसको हम किसी एलपीएफ फिल्टर के थ्रू क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर हम एक नॉइज शेपिंग सर्किट लगाएंगे। नॉइज शेपिंग सर्किट लगाने से भी जो एक्स्ट्रा नॉइज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। Then next we come with your introduction with your sigma delta sigma modulator. So delta sigma modulator provide your various feature. One is called your high resolution and low cost ADC. इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, उसमें एडीसी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है। मेड पॉसिबल बाय चिप्स दैट इंटीग्रेट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सर्किटरी। ओवर सैम्पलिंग एंड नॉइज शेपिंग कंसेप्ट आर अप्लाइड। क्लियर। जो हमने अभी पढ़ा है कि ओवर सैम्पलिंग करने से हमें एंटी अलाइजिंग फिल्टर का रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाता है, और नॉइज शेपिंग की वजह से उसमें नॉइज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हम किसमें अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा सिग्मा मॉडुलेटर में। और सर्किट्स यूजेस फॉर, हमने इसके सर्किट के अंदर एक कंपैरेटर और एक इंटीग्रेटर यूज किया है। तो कंपैरेटर को उसने एक डेल्टा की फॉर्म में बोला है और इंटीग्रेटर को उसने क्या बोला है, सिग्मा। So as per your block diagram, that program show with your comparator plus your integrator, that is called as delta sigma modulator. Clear? So here we can getting your block diagram of your delta sigma modulator, in which we can apply the plus input signal from x1, and that is your 1 bit DAC. You can say digital to analog converter. So that both of the inputs are compared, both of the inputs are compared with the help of your comparator, and you can getting the difference of between two input, that is called your x of t. Clear? And again you can use the integrator. When x2 will be passed from your integrator, you can find the a signal that is called your x of 3, and after that you can pass that particular signal is from one more comparator, that is called your 1 bit ADC, which can convert your analog signal into a digital signal. Clear? So here again we can again the same closed loop we can use here. So that loop will be regenerate, or you can say working until we can getting your desired output at your delta sigma modulator output. Clear? So if to digital filter अगर आपको आउटपुट पे 1 मिलता है तो क्या होगा, आपका डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज डिफरेंस क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो अब इसने वर्किंग कैसे की है, दैट विल बी क्लियर बाय योर दैट फिगर, इन विच द x2 इंटीग्रेटेड विद द प्रीवियस सैंपल्ड वैल्यू,
produce a x of 3 mean of this value. यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपके एक x of 1 को इनपुट पे अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटर के थ्रू जब x1 जाता है तो उस केस में क्या होता है, आपका x2 जो है, सॉरी यहाँ से x of 5 जो है वो x1 के साथ क्या होगा, कंपेयर होगा। क्लियर? तो आपने क्या किया यहाँ पे, जो आपका ये यहाँ से सिग्नल मिलता है, सॉरी यहाँ आपने शो किया हुआ है x of 3, ठीक है। तो यहाँ उसने लिखा है कि जो x of t है that is integrated with the previous sample value produced sample value and produce a x of 3 mean of this value, यानी कि इस x of t को हम एक previous value के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x of 2 जो है इंटीग्रेटर में जाने से पहले एक प्रीवियस सैंपल वैल्यू के साथ क्या होगा, कंपेयर होगा। तो आपके फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपने x2 को प्रीवियस सैंपल वैल्यू क्या होगी आपकी x of 3 and -1। क्लियर? उससे आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी जो करंट वैल्यू है वो आपने x of 3 बोली है, तो x of 3 की प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, x of 3 and -1। तो यहाँ x of 2 जो है वो आपकी प्रीवियस वैल्यू के साथ क्या होगा, पहले कंपेयर होगा, फिर उनका जो आउटपुट आएगा उसको आप किसको दे दोगे, इंटीग्रेटर को दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x of 2 को प्रीवियस सैंपल वैल्यू के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी इंटीग्रेटर के आउटपुट पे, दैट इज x of 3। अगर वो x of 3 जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका x of 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? अगर वो x of 3 जो ग्रेटर देन की बजाय लेस देन है, तो x of 4 क्या आएगा आपका, 0 आएगा। सेम अगेन यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर x5। क्लियर? अगर वो x4 1 है तो वो +1 जनरेट करेगा x5 पे, अगर वो x4 0 है तो वो क्या जनरेट करेगा, -1 जनरेट करेगा। और ये स्टेप्स को हम फर्दर क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे until you can get the desired output at your output for your delta sigma d modulator. Clear? So here we also come with your DPCM encoder and DPCM decoder. So that is called a differential pulse code modulation. So here we see the block diagram of a differential pulse code modulation. That diagram will be same as you can use in your PCM, which we can discuss in my previous video. So here we also explain the working of your DPCM. So what is the अगर हम देखें तो DPCM में क्या हो रहा है कि DPCM आपने एक एनालॉग इनपुट दी, उसको सैम्पलर में देने के बाद दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर DPCM। आपने सिंपली एक इनपुट यहाँ ऐड किया है, प्रेडिक्शन फिल्टर आपने यहाँ पे इंटीग्रेटर यूज कर रखा था, उसको उसने एक प्रेडिक्शन फिल्टर की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है? और लास्ट में क्या लगा दिया है, एक एनकोडिंग डिवाइस लगा दिया है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब वो कैसे काम कर रही है वो ध्यान से देखिए एज पर योर ब्लॉक डायग्राम। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मींस इन विच वी आर टेकिंग द सक्सेसिव सैंपल डिफरेंस। इट मीन्स जो आपके सैंपल्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेशन में है उनका हम डिफरेंस लेके चलेंगे। क्लियर? तो मैंने अपने लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में इसका मीनिंग थोड़ा अच्छे से और भी क्लियर कर रखा है, देखेंगे नेक्स्ट हम। ठीक है, तो आपने एक सैम्पलर लिया, दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर DPCM एनकोडर। तो आपने एक इनपुट सैंपल लिया, उसको आपने सैम्पलर को दिया, सैम्पलर क्या करेगा, आपका उस इनपुट को सैंपल आउटपुट में चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड योर एक्स ऑफ NTS। ठीक है, और जो इंटीग्रेटर है और यू कैन से प्रेडिक्शन फिल्टर है, दैट विल बी क्रिएट योर प्रेडिक्टेड आउटपुट, यू कैन से स्टेयरकेस आउटपुट, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर x ऑफ NTS। आप इन दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर सिग्नल मिलेगा। क्लियर? उस एरर सिग्नल को जब आप क्वांटाइजर के थ्रू पास करोगे, देन यू कैन गेटिंग योर EQNTS। that EQNTS will be encoding, so that will be generate a DPCM, differential pulse code modulation, at your output. Clear? So how that will be generate a DPCM at your output, that will be seen by your some mathematically analysis. So आपने सिंपल जो PCM का डायग्राम पढ़ा है
उसमें आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन फिल्टर यूज कर रखा था, तो डीपीसीएम के अंदर ये एक ब्लॉक ऐड हुआ है। इस ब्लॉक के ऐड होने की वजह से आपका जो पीसीएम है दैट विल बी डिफर फ्रॉम योर डीपीसीएम। तो ध्यान से देखिए, आपको जो यहाँ पे एरर सिग्नल मिल रहा है ENTS, वो क्या मिलेगा, x इनपुट का और इसका डिफरेंस मिलेगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय योर x NTS माइनस x कैप ऑफ NTS। क्लियर। अब उसके बाद जो क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल मिलेगा दैट इज EQ NTS, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर क्या होगा वो आपका, यहाँ से EQ NTS क्या मिलेगा, ENTS मिल रहा है, दैट इज ENTS, और प्लस में यहाँ उसके पास क्या आ रहा है, EQ NTS क्या मिलेगा हमें, प्लस में यू कैन से योर quantization error, with your quantization EQ NTS क्या होगा, that will be represented by ENTS प्लस में quantization error। it means यहाँ हमें एक तो मिलेगा क्वांटाइज्ड आउटपुट मिलेगी प्लस सम एरर मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो आपने उसी फॉर्म में से लिखा हुआ है। और इनपुट टू प्रेडिक्शन फिल्टर, आपकी प्रेडिक्शन फिल्टर की इनपुट क्या होगी, उसने लिखा हुआ दैट इज XQ NTS। तो XQ NTS आपको क्या मिल रही है, दैट इज XQ NTS, वो हमें क्या मिल रही है, दैट इज यहाँ से आपको दैट इज X कैप ऑफ NTS, XQ NTS जो आपको आउटपुट मिल रही है प्रेडिक्शन की, दैट इज EQ NTS प्लस में X कैप NTS। तो ये आपकी आ रही है, यहाँ से आपकी जाएगी X कैप NTS प्लस में EQ NTS, दैट विल बी प्रोड्यूस योर XQ NTS, दैट इज द इनपुट ऑफ योर प्रेडिक्शन फिल्टर। क्लियर, क्या हुआ, यहाँ से आपने देखो यहाँ पे आपको एरर सिग्नल क्या मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इट मींस X ऑफ NTS माइनस में X कैप ऑफ NTS, और जो EQ मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, ENTS प्लस में सम एरर सिग्नल, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर QENTS, दैट इज कॉल्ड योर क्वांटाइजेशन एरर। और अगर हम इस फिगर के देखें तो हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन फिल्टर की इनपुट पे क्या मिल रहा है, दैट इज वन टर्म फ्रॉम कम फ्रॉम हेयर एंड वन टर्म कम फ्रॉम हेयर। तो जो यहाँ से आ रही है दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर EQ NTS, और जो यहाँ से आ रही है दैट इज कॉल्ड योर X कैप ऑफ NTS। तो आपने उसी फॉर्म में उसे लिखा, लेकिन आपको पता है कि आपका X कैप ऑफ NTS क्या है, क्लियर, एक्चुअल में क्या है। अभी आपने यहाँ पीछे लिखा है X कैप ऑफ NTS क्या है, सॉरी EQ NTS आपने अभी निकाला है, दैट इज कॉल्ड योर ENTS प्लस में QNTS। तो हमने EQ की जगह वो वैल्यू प्लेस करवा दी। क्लियर, और उसके बाद आपने ENTS को क्या लिखा है, X ऑफ NTS माइनस ऑफ X कैप NTS। तो आप उस वैल्यू को फर्दर फिर यहाँ इक्वेट करेंगे, उसमें ये टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, सैंपल प्लस क्वांटाइजेशन नॉयर जो है वो आपके आउटपुट में मिलेगी, सैंपल आउटपुट प्लस में। तो प्रेडिक्शन फिल्टर की इनपुट टू प्रेडिक्शन फिल्टर क्या होगा, X ऑफ NTS प्लस में Q ऑफ NTS। क्लियर, सो again you can come with your DPCM decoder. So decoder will be same as your encoder, but only one difference is here, हमें DPCM की जो आउटपुट में मिल रहा है उसे हम डिकोडर को अप्लाई करेंगे। जो डिकोडर है वो हमें क्या देगा, EQ NTS प्रोड्यूस करेगा, क्लियर, क्वांटाइज आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जब हम उसे एक प्रेडिक्शन फिल्टर की आउटपुट के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेयरकेस आउटपुट जनरेट हो जाएगी। उस स्टेयरकेस आउटपुट को जब आप LPA फिल्टर के थ्रू पास करोगे तो हमें एक ओरिजिनल सिग्नल यहाँ जनरेट हो जाएगा। क्लियर, इट मीन्स यहाँ से आपका स्टेयरकेस अलग हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा, एनवलप ऑफ द इनपुट सिग्नल रहेगा, दैट विल बी रिप्रेजेंट योर ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। क्लियर, so that block will be same as your transmitter blocks, but here we use encoding and here we use decoding। क्लियर, उसमें भी जो प्रेडिक्शन फिल्टर हमारा सेम यूज हो रहा है। प्रेडिक्शन फिल्टर हमें क्या दे रहा है, X कैप ऑफ NTS दे रहा था। X कैप ऑफ NTS को जब आपने EQ NTS के साथ ऐड करवाया तो हमें क्या मिला, X कैप ऑफ NTS को आपने जब X कैप ऑफ NTS को जब आपने EQ NTS के साथ ऐड करवाया तो आपको क्या मिला है, क्वांटाइज्ड मिला है, दैट विल बी रिप्रेजेंट योर स्टेयरकेस सिग्नल। क्लियर, जो स्टेयरकेस सिग्नल को जब आप किसी LPA फिल्टर के थ्रू पास करोगे यू कैन गेटिंग योर फाइनल आउटपुट in the form of your original modulating signal। Clear, so here we also clear the concept of your PCM and DPCM with the help of your one waveform। in PCM you can use the sine wave here। ठीक है, तो जैसे मैंने एक साइन वेव ली हुई है, उसके मैंने डिफरेंट लेवल्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे उसकी वैल्यू 3.1 है या 3.5 है, 2.5 है, 2.2 है। अगर हम PCM यूज कर रहे हैं तो हमें हर लेवल को एनकोडिंग के अंदर कंसिडर
लेना पड़ेगा। इट मीन सपोज करो अगर आप किसी लेवल को 3 बिट से शो कर रहे हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ लेवल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो सारे लेवल क्या होंगे आपके, एनकोड होंगे। बट इन केस ऑफ योर डीपीसीएम आपका जो आपने जो एग्जांपल लिया हुआ है दैट विल बी आल्सो मोर, स्टेप साइज उसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो आपके ये सैंपल्स बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मोर क्लोज आ जाएंगे एज कम्पेयर टू योर पीसीएम। ठीक है, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि आपने स्टेप साइज प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा प्रोड्यूस किया है। तो step size is further reduced in case of your DPCM because in which you are taking the successive sample difference, or you can say very strong correlation signal difference। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सैंपल्स दूर दूर हैं यहाँ कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्लियर। वैसे भी देखा जाए अगर हमें ये पता है कि हम अगर नाइक्विस्ट रेट को फॉलो कर रहे हैं तो नाइक्विस्ट रेट हमें क्या कहता है कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर 2 FM। क्लियर। सो दैट 2 FM terms, so fs should be greater than equal to your 2 FM, so that 2 FM जो है को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने उस fs को बढ़ा दिया तो आपके सैंपल्स क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर सैंपल्स बढ़ रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में यहाँ जो सैंपल्स है वो दूर दूर हैं और यहाँ क्या हो जाएंगे, आपके पास पास हो जाएंगे। तो हम यहाँ हर एक लेवल लेने की बजाय ओनली सक्सेसिव सैंपल का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो अगर देखें फिगर में तो 3.1 और 3.5 का डिफरेंस क्या होगा, 0.4। 3.5 एंड 4 का डिफरेंस क्या होगा, 0.1। एंड 3.4 और 2.9 का डिफरेंस क्या होगा, 0.5। क्लियर। तो इसमें हम हर लेवल को एनकोड करने की बजाय हम इनके डिफरेंस को एनकोड करेंगे। सो बैंडविड्थ विल बी मोर सेव एज कंपेयर टू योर पीसीएम। Clear. So we increase the number of samples by increasing the sampling rate, and sample are more correlated to each other। अगर sampling rate increase होगा तो samples बहुत ज़्यादा नजदीक आ जाएंगे और इसका मतलब क्या होगा, that will be more correlated with each other। Clear. The second one is in PCM we provided digital data over all sample, but in case of your DPCM we are taking the difference between the कंजक्टिव सैंपल, जो पास पास सैंपल उनका हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। थर्ड वन इज सो एम्पलीट्यूड लेवल रिड्यूस इन केस ऑफ योर डीपीसीएम एज पर डिफरेंस ऑफ योर कंजक्टिव सैंपल। क्लियर। सो इसमें क्या होता है कि डाटा रेट हाई होता है। अगर डाटा रेट हाई होगा तो जो सैंपल्स है वो नजदीक होंगे, अगर वो नजदीक है ज्यादा इट मींस इट्स कोरिलेशन फंक्शन इज वेरी हाई। And in case also we are taking the difference of your successive sample, so in which the reluctancy of the bit will be reduced so as per the number of level। And the fourth one is in DPCM due to difference between a successive sample are taken, so reluctance bit will reduce and the information is more compressive। Clear? I think ये चीज आपको clear होगी। Next we can come with your adaptive delta modulation। So I think that will be covered in my next video for clearing the concept of your adaptive delta modulation। So that topic will be clear in your next video। So thank you very much, and